शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। चलिए शुरू कीजिए। देखिए, आपके पास कोई केस है जो आपने करना है या मैं बताऊं? डॉक्टर केस तो नहीं है मेरे पास। अच्छा चलें, देखें हम ऐसे करते हैं कि एक पेशेंट आई है। वो जो केम शी केम, मतलब अब तो ज़्यादा जीपी के से ही आते हैं जो मोस्टली होता है ना। अगर आरसीयू है तो फिर इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि ज़्यादातर जीपी से आता है। हमारे यहाँ कहीं से भी आया, चलें सोच लें कहीं से भी पेशेंट आए, पेशेंट रेफर्ड बाय द जीपी। शी दे हैव डन, बिकॉज एंटीनेटल की बात हो रही है तो दे हैव डन फॉर हर द इन्वेस्टिगेशन, and the blood investigation her platelet count is low at 28 week. Okay, then he repeated it again, and at 30 week it become now 96. So the question is that how you are going to manage her, your management में along with the differential diagnosis. चले बताएं, करेंगे, शुरू करेंगे? डॉक्टर यास्मीन, हेलो, हेलो, डॉक्टर यास्मीन, कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो डॉक्टर, म्यूट था। डॉक्टर, आपने जो सिनेरियो बताया है, रेफर होकर आई है एंटीनेटल में, सीबीसी पे प्लेटिलेट उसके लो हैं एट 28 वीक, अगेन रिपीटेड एट 30 वीक, व्हिच वर एट 60। 96, 96 कुछ भी कर लें, लो है, कुछ भी कर लें, ठीक है। लो है। Okay. Okay. First of all, I will introduce myself to patient, take her introduction, then greet the patient. After that, I will take the focused history regarding her low platelet count, which is diagnosed during the antenatal investigations. I will take the any history of the bleeding disorder from bleeding from gum and hematuria, bleeding from any other body orifices, easy bruisability, or after that, I will take the history regarding any previous investigations of low platelet prior to this pregnancy, or uh, um, if done in the previous pregnancy, if she known or she have any investigations of that. After that, I will take history of the recent fever and like malaria or dengue, and history of the history of HIV, and any drugs she is taking, like like heparin, or और डॉक्टर्स के अलावा जो है एनी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ लो, इसके अलावा मान लो सीबीसी के अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशंस, एनी कंसल्टेशन टू डॉक्टर, और if she have any history of the previous madam, I will also inquire for her last menstrual period and regularity of the cycle, her current pregnancy, take the focused history of her current pregnancy regarding either this pregnancy was spontaneous or planned, spontaneous or induced, any history of the folic acid intake, dating scan, whether this was a twin pregnancy or a singleton, whether this was singleton or multiple pregnancy, history of the raised blood pressure in this pregnancy, and history of any bleeding per vagina in this pregnancy or discharge up till now, and how is her abdominal growth she fell, and what is the fetal movement up till now, any anomaly scan done, and any recent growth scan done or not. After that, I will take the history of past medical history, including the past menstrual history of heavy menstrual bleeding, and past medical history, including the hypertension, chronic renal disease, and SLE, EPILA, and any surgical history, especially the splenectomy, and history of the drugs like antiplatelet, method, anti tuberculosis drugs, and after that, history of the smoking, and other socioeconomic history, blood transfusion history, and um, uh, contraception, pap smear history, and एलर्जी हिस्ट्री एंड सोशो इकोनॉमिक, बस इतने ही हिस्ट्री में मैडम। चले चले, ऑप्स हिस्ट्री कंप्लीट कर रह ले, गई है। चले आज कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। डॉक्टर, ऑप्स हिस्ट्री रह गई थी, इन दैट आई विल इंक्वायर फॉर एनी हिस्ट्री ऑफ द लो प्लेटिलेट इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, इफ यस, diagnosed at what gestation, any complication, what was the outcome, mode of delivery, any postpartum hemorrhage.
and postnatal investigations for any in between the pregnancy, any documentation of the CBC report showing low platelet or normal platelet. Okay. Madam, then I will proceed for the examination, in which I will do the height and weight of the patient to calculate the BMI, blood pressure, temperature, respiratory rate, and pulse of the patient. Do other general physical examination, including look for the signs of anemia and jaundice, any cervical lymph node enlargement, palpable lymph nodes, and thyroid examination for enlargement, cardiac and chest examination, breast examination, and OPS examination, para-abdominal examination for OPS examination. In that, I will do inspection, palpation, and auscultation. I will look for any scar, measure the symphysiofundal height, and for a lie, and symphysiofundal height to correlate it with the gestational age, and lie and liker and fetal weight and fetal heart sounds and edema. Okay. आगे. आगे मैडम I will any bruises all over the body. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे ही देखेंगे. Madam, after that, I will do the investigations in which I wanted to know about the complete blood count of the patient with date. Any in that I wanted to see hemoglobin and platelet count and WBC's count to see whether it is only the platelet which are low or any other cell line is also decreased. After that, I need the blood group with RH factor of the patient and the complete blood count for any urine routine examination for any pus protein or blood hematuria and hepatitis B surface antigen, anti-HIV, anti-HCV, and random blood sugar level of the patient. I need rating scan with date and anomaly scan of the patient and a recent obstetric scan for fetal biometry, Leica volume, placental localization, and fetal heart sounds and movements. Estimated fetal weight also. Then? After, yes, जी डॉक्टर. ओके ओके कंटिन्यू. माशाल्लाह आप अच्छा जा रहे हैं. आगे चलें. Madam, also I wanted the PT, APTT, and INR level of the patient. INR of the patient. ओके. आगे. My other investigations will depend upon the history, examination finding, and investigations of the patient. ये बात आपने अच्छी कही है. फिर मैडम उसके बाद जो है मैनेजमेंट होगी, वो डिपेंड करता है ना कि पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हिस्ट्री पॉइंट्स या एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन. चलिए इसको सोच लें कि आपने क्या करना है. चले अच्छा चले फिर वो करते हैं. वाइवा से शुरू कर देंगे. चले यहाँ से शुरू कर देते हैं. अब आपकी बेस्ट फ्रेंड ही आपको बताएंगे ये जैनब. मैडम जैनब बताएंगी कि क्या कारनामा किया आपने. हाँ जैनब. और कोई जी और डॉक्टर. लोग भी बताएगा. चलिए जैनब से, डॉक्टर जैनब से शुरू करते हैं फिर दूसरा आए. कहिए डॉक्टर जैनब क्या कारनामा किया अपने दोस्त ने. जी जी डॉक्टर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. डॉक्टर वो डॉक्टर यास्मीन ने रीनल डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, एपीएलएस, एसएलई ये सारे जो भी है ना वो उसको रूल आउट करना था. जो डीडीज है इसकी, हाँ उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की. करना काय में था. ये इन्वेस्टिगेशन में करना था ना ज्यादातर. तो देखिए असल में क्या होता है इसमें जो हिस्ट्री है ना. चलें अच्छा ठीक है पहले आप पूरी बात करें फिर करते हैं. बोलिए फिर. और बोलिए. हिस्ट्री में जो है वो एनी डॉक्टर ने फिर कहा था कि मैंने एग्जामिनेशन में ब्रूजिंग वगैरह भी देख लूंगी, वरना तो वो गम ब्लीडिंग जो है वो पिटेचीज वगैरह वो भी देखनी होती है. और बीएमआई शायद डॉक्टर यास्मीन भूल गई थी, नहीं तो बोला था. वो भी एक. अच्छा पहले बोला था. मैंने बीएमआई बोला था. वाइटल साइन ओके बाद ओके. में बोला था. वो भूल गई थी. वाइटल साइन भूल गई थी. बीएमआई उन्होंने समय पहले बोला था. अच्छा अच्छा और, डॉक्टर. और कहिए. बाकी तो डॉक्टर अच्छा प्रेजेंट किया था. तो फिर आज आप इनको ऑरेंज ज्यादा दीजिएगा. ठीक है. आज ज्यादा ऑरेंज मिलेंगे यास्मीन को. डॉक्टर यास्मीन का. इंशाल्लाह ओके. इंशाल्लाह डॉक्टर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और किसी ने कुछ बताना है. एनीबॉडी होम.
ओके जी, कोई बताएगा क्या किया इन्होंने? प्लीज देखें, ऐसे ही काम चलता है, ऐसे ही आप अगर सुनेंगे तो फिर आप लोग को भी इसी तरह से आएगा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें डॉक्टर यास्मीन बहुत अच्छा किया, और उनके टीचर हैं डॉक्टर जैनब, तो आज उनको ऑरेंज ज्यादा दे देंगे, आज उन्होंने अच्छा किया है। तो और कोई बताएगा? कुछ बोलना है? चलिए डॉक्टर, चलिए यहाँ से करके फिर मैनेजमेंट पे आते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, अगर हमने हिस्ट्री से आपने शुरू किया था ना, हिस्ट्री से आपने जो शुरू किया था, आपने क्या किया, जो सब में इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना वो आप मिस कर चुकी हैं। फैमिली को कहाँ गई थी? फैमिली को आप नाराज हैं फैमिली से? उसकी बेचारी फैमिली ने क्या कसूर किया था? देखिए डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें आपने पूछ ली थी, लेकिन डॉक्टर साहब फैमिली की हिस्ट्री में क्यों आ रही थी? और एक चीज होता है जिसको हम, एक तो इडियोपैथिक होता है डॉक्टर साहब, एक इम्यूनोलॉजिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है डॉक्टर साहब, उसको जरूर करना होता है। देखिए दो इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, जो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक गैस्ट्रेशनल होती है और एक इम्यूनोलॉजिकल होगी। डॉक्टर साहब, ये जो होती है ना सारी चीज की बेसिस, इसके जो प्रेगनेंसी में जो होती है ना, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मगर गेस्टेशनल ज्यादा होता है, वो 75%, 75% वही होता है। और ये मोस्टली क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है। अब इसमें मसला दूसरा क्या आ जाता है, ये रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला, उस पर यूट्यूब पे डाल दूंगी। अब तो यूट्यूब वाले अच्छे हो गए हैं, उस पर जा रही है आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये क्या होगा कि देखिए पेशेंट का जो हमने किया था, फैमिली हिस्ट्री नहीं पूछी आपने। देखिए फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है ना इम्यूनोलॉजिकली, और फैमिली की हिस्ट्री के में आ जाता है वो वाला, वो हमने पूछा नहीं। ठीक है जी, अब आपका वो तो इम्पोर्टेंट हो गया, और उसी के पॉइंट्स से ना omit कर देंगे आप। तो आपने सब में पहले देखें डॉक्टर साहब, जो भी कोई डिजीज होती है, ये मोस्टली जो होती है ना, ये सिम्टोमेटिक होती है कि नहीं होती है सिम्टोमेटिक, आपको पहले ये पूछना चाहिए था कि भाई तुम्हें कोई सिम्टम है कि नहीं है। मैंने तो आपको केस दे दिया था आपने। देखिए मोस्टली जो होती है ना ये गेस्टेशनल, ये इडियोपैथिक होती है, और ये जब प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेगनेंसी में डिस्कवर होता है। अच्छा, मैंने आपको दूसरा पॉइंट ये बताया था कि ये 28 पे हुई थी, फिर 32 पे रिपीट किया था, वो क्यों करते हैं, कोई बताएगा? मैम बताइए। 4 वीकली इसके रिपीट करते हैं कि इफ इट इज डिक्रीज लेस देन 70,000 इट्स दैट इट इज आईटीपी। 4 जबरदस्त, वीकली रिपीटिशन हम करते हैं। जबरदस्त अगर डॉक्टर साहब। 70,000 से अबव है तो इट्स मीन कि ये जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। यू तो हैव टू फिर आप, कीप आई ऑन द पेशेंट। माशाल्लाह आप अच्छा बोल रही हैं, तो आप क्यों नहीं प्रेजेंट करती हैं केस को? आपने सारे चांस जैनब और यास्मीन को दे देने हैं, वो दोनों फिर सारे खा जाएंगे आपके ऑरेंज, आपको कुछ नहीं मिलने का। अच्छा चलें, इसमें सॉरी प्लीज डॉक्टर जैनब और डॉक्टर यास्मीन माइंड मत कीजिएगा, मैं सिर्फ इसलिए बात कर देती हूँ क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब इससे थोड़ा मैम चेंज वो होता है, तो थोड़ा जो मूड होता है ना, एक देखिए पढ़ाई भी का भी एक लिमिट होती है, और पढ़ाई में भी जी जी डॉक्टर, कोई बात आप, नहीं है, हमें अच्छा लगता है। तो वो ये अपनी फैमिली, आप मेरी फैमिली हो, बिल्कुल मेरी सिस्टर्स हो, तो उसमें तो ऐसा ही चलेगा ना, क्योंकि देखिए आप संजीदगी के बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे तो उनको मार के तो नहीं पढ़ा सकते ना, उनको साथ थोड़ा वो भी देना पड़ता है कि भाई हम तुम्हें टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, ये करेंगे। तो आप भी यास्मीन के साथ सही करती हैं, उसको आप ऑरेंज दे लेती हैं, क्योंकि ऑरेंज का मौसम है ना, और पाकिस्तान जैसे ऑरेंज दुनिया में नहीं मिलते, ये याद रखिएगा। जो पाकिस्तान के दूसरे वाले है ना, वो नारंगी जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं मिलती हैं इतनी अच्छी। हाँ सऊदीया में मिलती है, और दूसरे मुल्कों में इतनी अच्छी वाली नहीं मिलती, उनके यहाँ दूसरी होती है छोटी वाली। एनीवे, तो अब अगर हम ये जो चीज़ कर रहे हैं, देखिए सब में पहले पेशेंट्स को हमने पूछना था कि मैडम आपको कोई सिम्टम है तो है कि नहीं। डॉक्टर खान ने बिल्कुल सही कहा कि इसको हमने देखे 32 पे इसलिए रिपीट किया था कि 4 वीकली रिपीट करते हैं। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में डॉक्टर साहब ये मोस्टली जो होती है ना, ये एसिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, फिर आपने ऐसे शुरू करना है, आई विल आस्क फ्रॉम हर द हिस्ट्री इफ शी इज सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। इफ शी इज एसिम्टोमेटिक, वेल एंड गुड। इफ शी इज सिम्टोमेटिक, आई विल आस्क her how long she is having this problem. Okay, if this problem is having the bleeding as what, डॉक्टर साहब देखिए इसकी जो ब्लीडिंग होती है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, ये जो होती है ना मिकोजल ब्लीडिंग होती है ज्यादातर। मिकोजल जो जहाँ पे जो चीजें होती हैं, जैसे हमारे गम्स हैं, जिंजिवास होते हैं, इनमें जो नोज के साइड होती है, इसमें ज्यादातर ये ब्लीडिंग वहां से शुरू होती है। कि ये जो ब्लीडिंग, जो दूसरी वाली जो ब्लीडिंग जिसको हम बोलते हैं कि पीवी ब्लीडिंग और ये ब्ला ब्ला जो होती है ना डॉक्टर साहब, ये जब वो जारी होती है, ये जब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग पे चली जाती है तो ये दूसरी चीजें हो जाती है, मगर नॉर्मली जो होता है ना डॉक्टर साहब, ये होता है।
ठीक है जी। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, हम कोई अभी खौफनाक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एंटीनेटल पे आई है तो जिंदा सलामत आई है, ठीक ठाक आई है। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग पे चले गए तो वो हमारी शक्ल देखने थोड़ी आएगी, वो तो ईआर जाएगी। तो ये हमें ख्याल रखना है, ठीक है जी। अब हमने उससे ये पूछ लिया, आपने सारी हिस्ट्री, क्योंकि म्यूकोजल की बात हो रही थी ना, तो म्यूकोजा की जो होती है ना वो पूछ रहे होते हैं हम, कि भाई तुम्हें ब्रूजिंग तो नहीं है, पिथिकाय तो नहीं हो गया, जब कभी कोई, अगर तुम्हें कभी कोई आईवी या आईएम इंजेक्शन लगा उसके बाद तुम्हें ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हुई, तुम्हें कम से तो ब्लीडिंग नहीं हुई, और अगर तुम्हारी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद, वो तो फिर उसमें आ जाएगा। और दूसरी, फिर आपने जो दूसरे हिस्ट्रीज पूछी थी ना, वो चले आपको याद आ गया था, ऑब्स्टेटिकल की, वो सही आ गई थी, आपने फिर सही पूछ लिया था। अच्छा, इसमें जो एक चीज होती है ना, जो आपने जो मेडिकल और सर्जरी, ये सारी चीजें पूछ ली थी, बस आपकी वो रह गई थी फैमिली हिस्ट्री। डॉक्टर साहब वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैमिली हिस्ट्री में, और उन्होंने सही कहा, आपका वो जो एग्जामिनेशन वो रह गया था। डॉक्टर साहब ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है ना, ये सारी ब्ला जो चल गई, आपने बिल्कुल अच्छा कर लिया। इसका जो मुश्किल होती है ना, बस ये, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है जी। आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन को बोलना है, आपने ये शुरू करना है, आपने ये कहना है कि मैं इसका इन्वेस्टिगेशन जो थी ना, मैंने आपसे कहा था 30 वीक पे आई है, तो उसका 96 हो चुका है। तो आपके पास पेशेंट आई है, तो उसको आपने भी तो कंफर्म करना है, उसने जो कुछ कहा कर दिया, आप लेके आ गई, मान लिया आपकी बात, आपको ये तो पता नहीं। क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो होता है ना यूरोपियन साइड पे, और जो होता है ना, पेशेंट के एक मखसूस एंटीनेटल होता है, इस वीक पे इनको मिलेगा, टाइमिंग होते हैं उनको, बुलाया जाता है, उनको भेजी जाती है, वो क्या कहलाता है, इनकी जो कार्ड होता है ना, उसमें लिखा होता है कि इस पे जाना है, और उनको ईमेल पहुंच जाती है। ईमेल से मिलता है कि इस आपको इतनी डेट को आना है, ठीक है जी। अब आपको तो नहीं पता कि पेशेंट कब आया है आपके पास, आपके पास पेशेंट कब आया है, 3 वीक के बाद आया है या 4 वीक के बाद आया, कब पेशेंट आया है उसके पास, आपको ये देखना है, ठीक है जी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आप 1 सेकेंड, तो आपको ये देखना है कि वो कितने दिन पहले आई थी। तो डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर खान ने बताया कि हमें इसको 4 वीक के बाद रिपीट करनी होती है। तो वो आप देखिए 32 वीक पे आ रही है, तो 32 वीक के बाद हम चेंजेस आते हैं ना, हमारी जो एंटीनेटल केयर होता है उसका एक प्लान होता है। तो एंटीनेटल केयर के जो विजिट में आई है हमारे पास, तो अगर हमने कहा था वो 30 पे आई, तो हमने पहले तो कारनामा ये करना है कि इसको वी हैव टू रिपीट इट, वी हैव टू कंफर्म इट। आपको समय पहले ये कहना चाहिए, फर्स्ट आई विल कंफर्म हर इन्वेस्टिगेशन, द डायग्नोस। आपके पास तो डायग्नोस नहीं है ना, वो डायग्नोस लेके थोड़ी आई है आपके पास कि उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आपने डायग्नोस करना है ना। क्योंकि देखिए केस सारा क्या था, केस तो यही था ना कि भाई उसका जीपी ने उसको किया, और उसके जीपी को मिली थी 100 पहले 28 वीक पे, फिर बाद में मिली 30 वीक पे, इतनी कम हो गई, तो फिर उसने आपके पास रेफरल दिया। तो आप उठा के उसको कैसे कह देंगे कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, या आप कैसे कह देंगे इसको हेल्प सिंड्रोम है, या फैटी लीवर जा रहा है, या एचआईवी जा रहा है, तो कैसे करेंगी। उसके लिए क्या होगा, समय पहले आपने डायग्नोस को कंफर्म करना है। तो डायग्नोस को कैसे कंफर्म करेंगी, यू हैव टू रिपीट द इन्वेस्टिगेशन। और कौन सी करेंगी, वो आपने सही कहा था, समय पहले आपने फुल ब्लड काउंट करानी है। फुल ब्लड काउंट जो आप कराएंगी, उसमें आपको देखना है प्लेटलेट्स। और डॉक्टर साहब प्लेटलेट के साथ साथ आपको दूसरी चीज क्या मिलेगी, आयरन भी अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसके साथ मिल गया, हीमोग्लोबिन भी लेस मिल गई है, तो डॉक्टर साहब फिर ये प्लेटलेट काउंट के साथ आयरन डेफिशिएंसी भी अगर हो रही है, तो फिर ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी एनीमिया की तरफ। ओके जी, क्योंकि प्लेटलेट्स तो खाली प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं, अभी एनीमिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं आप, डॉक्टर खान, बायोसाइटोपिनिया ये क्या होता है, ओके शायद गलत लिखा होगा, एनीवे। डॉक्टर बायसाइटोपिनिया जिसमें 2 सेल लाइन घट कम हो, और तीसरा पेन साइटोपिनिया जिसमें 3 सेल लाइन कम हो। अच्छा वो बात कर रही है, मैंने असल में इतना गौर नहीं किया, क्योंकि मैं अभी जी जी अब मैं असल में पता है क्या डॉक्टर साहब, जब होता है ना, आपको जब वो करना पड़ता है ना, ये क्या है जो ऑनलाइन पे करना, तो फिर आपके जो हाथ पांव जो है ना, एक तरफ आपकी आंखें इधर चलती हैं, एक तरफ कोई ऐड हो रहा था उसको आपने देखना होता है। मगर जूम में ये है कि जी जी जो हो डॉक्टर। जाते हैं ना, वो खुद ही ऐड हो जाते हैं, इसमें आपको ऐड नहीं करना पड़ता। मगर वो जो है गूगल में ना, उसमें आपको ऐड करना पड़ता है, वो आपकी मर्जी है। मगर गूगल का मेरा ऐसा है कि हाँ, मैं गूगल इस्तेमाल करते हैं ना ज़्यादातर, तो गूगल में ये है कि आपको ऐड करना पड़ता है। तो फिर वो आपका जो जो होता है ना स्क्रीन, वो गायब हो जाता है। इसमें ज़रा ये कि ये खुद ही आ जाते हैं। अब जो बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, तो आपको उनको देखना पड़ता है कि किधर आए, तो आपको डबल काम करना होता है। सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी।
अच्छा, फिर उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब कि आपने फुल ब्लड काउंट में एनीमिया भी साथ देख लिया, तो उसको आपका ज्यादा हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ से जाएगा। डॉक्टर साहब इसकी डायग्नोस को आपको कंफर्म करने के लिए क्या होगा कि रेटिकुलोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो रेड सेल जो टर्न होता है ना, इसमें आपको दूसरे रेटिकुलोसाइट्स की वजह से आपको दूसरी पैथोलॉजी भी मिल सकती है। तो आपने ये भी चीज देखनी है, फुल ब्लड काउंट। खाली फुल ब्लड काउंट में उठा के आपने प्लेटलेट्स नहीं देखना, क्योंकि डॉक्टर साहब इस वक्त आप डायग्नोज को कंफर्म कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड करना है जो डॉक्टर जैनब ने कहा था। ठीक है जी, आपको ऑरेंज देने से पहले जो डॉक्टर जैनब कह रही थी कि ये चीज आपने एक्सक्लूड करनी थी, तो ऐसे करेंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या कर लिया, एक इसका डायग्नोस्टिक चीज और होती है जिसको हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म कहते हैं। डॉक्टर साहब पेरिफेरल ब्लड फिल्म में क्या होता है कि ये इसमें क्या होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ये इसमें क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के जो क्लम्पिंग मिलते हैं और ये फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं प्लेटलेट्स के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है ये। ठीक है जी, प्लीज ये याद रखिएगा कि इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है पेरिफेरल ब्लड फिल्म एंड द प्लेटलेट काउंट। फिर जी जो मैम, मैम हमारा एक केस आया था। सॉरी डॉक्टर खान, क्या कह मैम रही हमारा जो IMM में केस आया था वो तो, मैम हमारा, मैंने एक केस देखा था तो उसमें स्पोरियस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था ना, जो क्लम्पिंग की आप बात कर रही हैं। जी जी, तो आपको कभी आया था? कभी फॉल्स, जी जी मैम, हाँ तो हाँ। वो स्पोरियस हाई रिस्क बुक में ये लिखा हुआ है, स्पोरियस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज दिस व्हेन द ब्लड सेल जो प्लेटेड होते हैं वो क्लम्प्ड हो जाते हैं, वो आप सूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देता है। अच्छा, अगर मैं जो आप डायग्नोस्टिक की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम देखिए डॉक्टर खान, हम पता क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सक्लूशन कर रहे हैं। इसमें जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूशन करना बाय आपका इन्वेस्टिगेशन से। और क्योंकि डॉक्टर साहब आप अगर हिस्ट्री में लेंगे तो ये चीजें तो आप हिस्ट्री में इतनी लंबी तो नहीं लेके बैठ जाएंगी ना, तो ये आपको डायग्नोस जो एक्सक्लूशन करना है, डायग्नोस ऑफ एक्सक्लूशन जो करना होगा ना, वो आपको इसमें से करना होगा। ठीक है जी, आप सही कह रही हैं, आपने अगर उससे पहचाना है, देखिए यही तो हम कर रहे हैं, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही आपने बात की है। तो इसमें क्लम्पिंग हो जाएगी और इसके जो फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे ना, ये आपको बनाएगा, ये मेन डायग्नोस्टिक है पेरिफेरल ब्लड में। और फिर दूसरी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, यूएनडी एलएफटी करेंगे डॉक्टर साहब। इसमें क्या हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ये जो आपको शायद याद होना चाहिए कि एक हमारी दो चीजें होती हैं, एक पीईटी होता है और एक हेल्प सिंड्रोम होता है। डॉक्टर साहब आपको बता, अभी हमने जब किया था पीईटी, शायद पूरा नहीं हमने किया, पीटी में देखें क्या होने लगता है, इसमें बाज दफा आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता, इंक्रीज हो रहा हुआ, मगर क्या होता है कि आपकी जो फिर वो हेल्प सिंड्रोम की मैं बात कर रही हूँ, पीटी, इसमें बाज दफा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, मगर आपकी जो बायोकेमिकल जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एबनॉर्मल होती है, और उससे आपको पता चलता है कि ये आपका ये हेल्थ सिंड्रोम में गई है, ये मोलासिस है, जो भी कुछ हो रही है। तो डॉक्टर साहब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। बहुत दफा ये होता है कि हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर देख के पेशेंट का उसको बाय बाय कर देते हैं, उसको भेज देते हैं घर पे, तो उसके हम बायोकेमिकली नहीं उसको देख पाते। अगर नहीं देखेंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग में चला जाएगा, तो वो हेल्प सिंड्रोम में चला जाएगा। और डॉक्टर साहब हेल्प सिंड्रोम जो है ना, वो समय खौफनाक होती है। तो इस वजह से हमें ये किस चीज से मेनली मिलेगी, प्लीज डॉक्टर साहब किसी का माइक खुला हुआ अगर वो बंद कर ले, माइंड तो नहीं करेंगी? तो ये किसी का खुला हुआ है हाँ, ये डॉक्टर सादिया, डॉक्टर सादिया प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। डॉक्टर सादिया, ठहर जाएं, फिर मैं इनका करती हूँ, एक सेकेंड। इनका मुझसे भी नहीं बंद हो रहा। डॉक्टर सादिया प्लीज, डॉक्टर सादिया, कैन यू हेयर मी? वो खोल के पता नहीं कहाँ चली गई हैं। हम्म, अगर पता है क्या, मैं म्यूट करूंगी तो फिर सबको म्यूट हो जाएगा। इसमें ये है ऑप्शन ना, तो म्यूट होगा, एवरीबॉडी विल बी म्यूटेड। तो प्लीज जब आपको अगर कुछ करना हो तो प्लीज आप फिर खुद ही लगा लीजिएगा, अगर मैं म्यूट करती हूँ। देखते हैं, अभी उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही है, अगर दोबारा आई तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी, प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर सादिया का यही खुला है, बाकी सबका ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें क्या होता है कि अब हमने जो दूसरे के एलएफटी एन्युअल किया, तो हमने एल्प सिंड्रोम को हमें एक्सक्लूड करना है, एनपीटी को हमें एक्सक्लूड करना, वो ऐसे ही हम करेंगे।
अच्छा जी, अब हमारा ये जो होता है ना, फिर थायराइड से भी इसका प्रॉब्लम होता है डॉक्टर साहब, तो थायराइड में भी हमने उसको थायराइड फंक्शन देखना है। और जो डॉक्टर साहब सही कह रही थी डॉक्टर यास्मीन, कि हमने उसके अकॉर्डिंग टू द मतलब उसकी जो कंप्लेन है या उसकी इन्वेस्टिगेशन है, तो हमने कोगुलेशन प्रोफाइल हमने करने देख ली, क्योंकि अब इसने कहना है शुरू कर दिया कि टाइम रन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कितना मिनट है, ये बताना शुरू कर देगा, तो लेट टू सी इट। ओके जी। तो फिर अब हमने क्या करना उसके बाद, यही फिर वही एंटीफॉस्फोलिपिड करना है अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब हमें इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर को एक्सक्लूड करना है इसमें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉन विली ब्रांड जो होती है ना, वो हमारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमको एक्सक्लूड करना है। ठीक है जी। और वो HIV मलेरिया तो आप बता चुकी हैं। ठीक है जी, ये खत्म हो गई बात। और इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए एग्जामिनर का क्या कुछ पता नहीं होता कि किस चीज पे उसने मार्क्स रखे हैं। डॉक्टर साहब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, बोन मैरो का एग्जामिनेशन होता है, ये लास्ट रिजल्ट पे करते हैं। लास्ट रिजल्ट पे क्या करते हैं, ये इसमें हमने क्या करना होता है, हेरिडिटरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है ना, उसको एक्सक्लूड करना होता है। अगर हमारी सारी बला बला जो हमने इतनी सारी ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन, जो पेशेंट के बहुत सारे पैसे खर्च कराएं, उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो आखिर में हम बोन मैरो की एग्जामिनेशन कराएंगे। मगर ये प्रेगनेंसी में नहीं होता, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे होता है, मगर मोस्टली प्रेगनेंसी में नहीं होता। ये ल्यूकेमिया हो, लिम्फोमा हो, उस वक्त आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये जो बोन मैरो के जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो करते हैं। और प्रेगनेंसी में मोस्टली अवॉइड करते हैं। मगर आपने पेश एग्जामिनर को तो बताना ही है, ये क्वेश्चन आंसर जरूर बताना सवाल का, कि हमने आखिर में लास्ट रिजल्ट पे, मगर प्रेगनेंसी में हम नहीं करते, ये लास्ट रिजल्ट होता है, वो बताना हमने ज़रूरी है। ठीक है जी, हमने ये कारनामे तो सारे अंजाम कर लिए। अब हम आते हैं मैनेजमेंट में। चलिए डॉक्टर यास्मीन है, डॉक्टर जैनब कौन आएगा, कि जल्दी से आ जाएं, क्योंकि इसका टाइम भी ख़त्म हो रहा है। कौन आएगा, चलिए हम इसकी वो करते हैं मैनेजमेंट। चलें, मैनेजमेंट कौन बताएगा, कीजिए। डॉक्टर मैं ही बता देती हूँ। डॉक्टर इसमें सिर्फ मेरे पास मतलब इन्वेस्टिगेशंस में अब प्लेटलेट लो हैं और इसी प्रेगनेंसी में हुए हैं, इसी लेकर चलूं। जी जी, इसी को लेके चलिए। आपके और पास मलेरिया डेंगू सारे नेगेटिव हैं, कोई हाँ ड्रग्स जी, की हिस्ट्री नहीं है। सब कुछ नेगेटिव है। मैंने आपसे ये कहा ना, पहले ही आपको शुरू में बताया था कि ये इसका ये है। बस आप ये लिखे कि बस और इसको डॉक्टर अपनी एपीटीपी नॉर्मल है। सब चीजें नॉर्मल है, सिर्फ इसको ये वाला प्रॉब्लम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डायग्नोस ओके प्रेगनेंसी में गेस्टेशन। ओके आप ये याद रखिएगा, जो भी आप मैनेजमेंट कर रही हैं, प्लीज ये दिमाग में रख के कीजिएगा कि इसको गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके जी, जी डॉक्टर। नोस इट। जी डॉक्टर। ओके चलिए। Doctor, first of all, my aim of management is to improve the quality of life of the patient, to decrease the complications of low platelet, including maternal and fetal complication. I will counsel the patient and her family regarding the diagnosis that she is having pregnancy at 30 weeks with low platelet. So, so it has some maternal and fetal complication. The maternal complication, including the risk of bleeding during the pregnancy, during the time of delivery, and in the postpartum period, and the fetal complication, including the low platelet and the risk of bleeding disorder in the fetus. So it is a high risk pregnancy, and for that I will involve the multidisciplinary team, including ops and a hematology clinic, senior obstetrician and a hematologist, and also the anesthetist and pediatrician. I will repeat, as my patient is only having low platelet count, there is no any symptoms of bleeding from any orifice, and there is no previous past medical, surgical, or anti-drug history. So I will, and my patient is asymptomatic at this time, and this is the platelet range is in the safe margins for any intervention during the pregnancy or during the further delivery. So my aim of management is to keep the platelet above 80, and I will सब counsel the एक patient मिनट, regarding the साथ ही danger साथ ही signs. डॉक्टर यास्मीन, सॉरी, जी टाइम खत्म हो जाएगा तो बीच में बात रह जाएगी। आप उसी के साथ साथ जो बता रही है ना कि आपका एम क्या है, तो आप उसी वक्त एग्जामिनर को पूछने का मौका ना दें, आप खुद ही ये बोल दें, एज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज 150 to 450। ओके, सो जी if she is having a mild, moderate or severe form of platelet count, means low platelet count, then I will manage according to that one। आपने ये कहना है, ठीक है जी। तो फिर वो एग्जामिनर आपको जी बोल देगा कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, जो भी कुछ है।
तो आपने पहले ये बोलना है कि नॉर्मल काउंट क्या होती है, माइल्ड क्या होती है। 100 to 150, 150 से लेस जो होगी ना, 100 to 150 माइल्ड हो जाएगी, और मॉडरेट क्या होगी, लेस देन 100 हो जाएगी, 1 और lakh से कम। हाँ जी, और सीवियर क्या होगी, सीवियर लेस देन 150 के 50 50,000 से यस कम। जी, बिल्कुल जबरदस्त, तो आपने ये खुद ही बोल तो लिया। डॉक्टर अभी ये जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में आ रही है। अब इसकी जो नाउ इन दिस पेशेंट द प्लेटिलेट काउंट आर इन द सेफ लिमिट for SPD for anesthesia. So I will repeat the platelet after 4 weeks and try to take the pregnancy till term. In between, I will follow the patient into the antenatal clinic on the 2 weekly basis, but I will repeat the platelet every 4 weekly. And follow the patient for any bleeding symptoms and complications developing in the mother or in the mother, like bleeding from any orifice, or risk of antepartum hemorrhage, risk of raised blood pressure, उसके लिए उसको monitor करेंगे आप प्लेटिलेट प्रोटीन यूरिया के लिए। ओके And at the 36 weeks of the pregnancy, I will again repeat the platelet count. If their platelet are normal, there is no need of any treatment, and patient is asymptomatic, there is no any treatment is needed. But if the platelet are going down, especially going down below the 50,000, so I will start the antenatal treatment in the form of first line treatment is tablet prednisolone, which will be starting dose of 20 milligram per kg, but we can increase after 1 week and escalate up to 60 mg per day. The second line of option, it is a somewhat slow process. The second line of treatment option is the IV immunoglobulin, that is more rapid, and it will be done in the conditions where time duration is very short to increase the platelet, and also when patient is bleeding actively. So along with the platelet transfusion, we will give the treatment in the form of IV immunoglobulin at the dose of 1 gram per kg per day for 2 days. Okay, and then repeat the platelet. It is somewhat more rapid. Other option is the anti D जो हम देते हैं डॉक्टर, हाँ हाँ मैं समझ गई, चलिए बोलिए। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे ना उसको, immunoglobulin, यस and आईवी that एंड is given into the आईवी और positive. दोनों दे सकते हैं, आईवी और आईएम जो होता है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। लेकिन डॉक्टर अगर प्लेटिलेट कम है तो हम आईवी प्रेफर करेंगे, स्पेशली ओके 30 के से कम है तो। डॉक्टर इसमें ये जो है हम पॉजिटिव पेशेंट्स में देते हैं, नेगेटिव पेशेंट में देने की जरूरत नहीं होती इसके। और उसके अलावा जो है, कहिए। जी डॉक्टर, इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट ऑफ द काज अगर है तो इस पेशेंट में तो अब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, काज नहीं है, तो इस वजह से बस हो गया। और लेस लाइकली है कि no, doctor. At the 36 weeks, I will again reassess the patient for its platelet count and for the symptoms of the patient. Take the anesthesia opinion, because there are a risk of the bleeding, and some anesthesia are contraindicated with some marginal limits of the platelets. So I will review the platelet. If it is more, if platelet count is more than 80, that is good, and the patient is non-symptomatic, then I will try to take the pregnancy to wait for the spontaneous onset of the labor. If the platelet are low, I will transfuse the patient with platelet, and also arrange the blood and cryoprecipitate and FFPs at the time of delivery, and also platelets. Okay, then. And okay, when the patient is into the labor, I will involve the multidisciplinary, including the anesthetist and pediatrician, and try to avoid the invasive procedures on the baby during, and do the continuous fetal electronic monitoring. क्या प्रोसीजर And maintain the labor care guide and manage the labor as such, but try to avoid the instrumental delivery, fetal scalp sampling, and fetal scalp electrode. जबरदस्त। And
Okay. After that, I will manage the third stage of the labor by active management of the third stage of the labor, and confirm the completeness of the placenta, and follow the baby for cord sampling for the platelet count, and after also monitor the patient for the postpartum hemorrhage. Strictly be vigilant